Hello everyone, I welcome you all to the Infinite Division platform. This is our sixth session of our NTSC Stage 1 question discussions. Okay, so as of now हम ninth के portion में motion का chapter already कर चुके हैं in our previous sessions, as well as हम laws of motion के chapter के कर चुके हैं numericals, as well as हम gravitation chapter के कर चुके हैं. And gravitation chapter of your NCERT comprises of two chapters, like gravitation जो first part है, as well as fluid. So today we'll be discussing some of the questions which is related to fluid. Okay, so let us see how many of you have joined through our platform. आदित्य ने ज्वाइन किया, अर्जुन, सिद्धार्थ, अरिजीत, ईशानवी, अखिल, सृष्टि, समृद्धि, अनुष्का, Shubham and Sachi, and still some of you are still joining. Anshika, Aditya, Alicia, and Disha, Hardik, Harshit, Daksh, Bhumi, Avyakt, Kabir, Kundan, Mayank, as well as Naman, Richa, Saksham, Sachi, Shubham, Shrishti, Tanay, Utkarsh, Varsha, and ठीक है. Most of you have joined. Okay, so those student who is new to our platform, they must know that today's session is about NTSC Stage 1 questions discussions. Okay, so NTSC is your scholarship based examinations, comprises of two stages, as you already know. इसके कितने stages होते हैं? Stage 1 as well as Stage 2. Stage 1 is your state level examinations. Okay, तो state conduct कराता है, and Stage 2 is your national level examination जो कि NCERT conduct कराता है. Those student who qualify Stage 1 will move on to the Stage 2 examination, and the pattern of the Stage 1 as well as Stage 2 is similar, but the level of difficulty of Stage 2 is quite high as compared to Stage 1. तो Stage 1 का तो already थोड़ा सा level कम होगा as compared to जैसे आप Stage 2 में जाओगे एकदम से drastic change आएगा, है ना? तो you have to be prepared for that, क्योंकि Stage 2 का जो national level examinations है, all the students from different states will compete with you. Okay, right now you are in Stage 1, so preparation हम अभी Stage 1 की कर रहे हैं. ओके, सो प्रिपरेशन भी हमारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए सो दैट आप Stage 2 तक भी क्वालिफाई आसानी से कर सकें. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द मार्किंग स्कीम फर्स्ट. Marking scheme has got MAT examination as well as SAT examination. So MAT examinations में आपके 100 questions आएंगे and eventually 100 with each correct option you will be getting 1 mark. So that means in totality you can maximum score that you can score is 100 marks in MAT. As well as SAT examination. Second examination is your SAT examination, which comprises of social studies, maths and science. ठीक है, तो इन तीनों के क्वेश्चंस आप में आएंगे एंड अगेन इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स. ये भी 100 मार्क्स का है. अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, द सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th. सो दैट मीन्स कि दोनों सिलेबस क्लास 9th और 10th के दोनों आने वाले हैं आपके, है ना? तो दोनों सिलेबस हम 9th का पोर्शन कर रहे हैं, एज वेल एज 10th का पोर्शन हम ऑलरेडी अपने क्लासेस में तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ में. ठीक है, सो दिस इज सेशन विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर फ्लूइड चैप्टर. ठीक है, सो ग्रेविटेशन हो चुका है भाई, फ्लूइड अब हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट मी आस्क यू गाइज, सो व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लूइड? यस निखिल. Okay, Shubham, बताओ, what do you know about fluid? What is fluid? I am talking about what is fluid. Anyone? कौन बताएगा? आदित्य, what is fluid? बताओ. दैट मीन्स कि इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे पहले बताओ. इस चैप्टर में यूल बी स्टडिंग अबाउट प्रेशर इनसाइड लिक्विड, यूल बी स्टडिंग अबाउट बॉयंट फोर्स, यूल बी स्टडिंग अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना? ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे. ठीक है, एंड रिलेटिव डेंसिटी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो यस, बताओ भाई, व्हाट इज फ्लूइड? बिकॉज राइट नाउ विल बी डूइंग फ्लूइड चैप्टर, एंड फ्लूइड के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली आई विल बी कवरिंग फ्लूइड,
स्टैटिक्स, आई एम नॉट कवरिंग फ्लूइड डायनेमिक्स, क्योंकि डायनेमिक्स आपके कोर्स में नहीं है. फ्लूइड स्टैटिक है, जहाँ पे फ्लूइड मोशन में नहीं रहता है, रेस्ट में रहता है. ये आदित्य बताओ, व्हाट इज फ्लूइड? एनीवन? Yes, anything which can flow is called as fluid ना. So beat your gas or beat your liquid, है ना. तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है. सो दे कैन बी क्लासिफाइड इट, वी कैन क्लासिफाई इट इनटू अ फ्लूइड. ओके, सो दैट मीन्स दे मस्ट फ्लो करना चाहिए, तभी हम उसको क्लासिफाई कहेंगे वो फ्लूइड में है. ठीक है. सो फ्लूइड में इस चैप्टर में आप फ्लूइड स्टैटिक पढ़ने वाले हैं. उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? सो लेट अस जस्ट गिव यू सम ग्लांस ऑफ व्हाट यू शुड लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज थ्रस्ट. थ्रस्ट क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, मान लो ये एक सरफेस है, इफ दिस इज अ सरफेस हुज एरिया इज ए एंड फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, सो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट. इसी को थ्रस्ट कहते हैं या फोर्स कहते हैं, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है. एंड दिस फोर्स इज यूनिफॉर्म, है ना. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है और इधर भी 10 न्यूटन है. इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, है ना. तो परपेंडिकुलरली लग रहा है इस पे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट. इसी को हम थ्रस्ट कहते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड टर्म दैट यू मस्ट नो इज थ्रस्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लिक्विड when you are immersing any particular object within the liquid. Like if I'll take a beaker which is filled with water, है ना, and an object is placed in it just like this. So what will gonna happen? क्या होगा? इस पे liquid force लगेगा, that is called, which is perpendicular to the surface. Liquid इस पे force लगाएगा, that is called liquid thrust, है ना. And it will always be acting perpendicular to the surface. So ये वाले जो forces है ना, ये वाले जो side वाले forces है, they will cancel out each other, है ना. So can you tell me which force is greater, the upward force applied by the liquid or downward force applied by the liquid? कौन सा ज्यादा greater होगा? Yes, yes. जितना डीप जाओगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है, लिक्विड प्रेशर. और जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो भी बढ़ता चला जाएगा ना, बिकॉज प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. हर एक स्मॉल यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, है ना. तो ये डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अपवर्ड. और ये जो फोर्स लेफ्ट वाला है और जो फोर्स राइट वाला जो लग रहा है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, है ना. सो बिकॉज दे आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो दैट डोंट यू थिंक कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कहां लगना चाहिए? कोई बताएगा? यस, इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, जो डाउनवर्ड लग रहा है, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स. सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बॉइंट फोर्स. इसी फोर्स को क्या कहते हो आप? बॉइंट फोर्स कहते हो, है ना. इसी फोर्स को क्या कहोगे? बॉइंट फोर्स, जो कि हमेशा अपवर्ड फोर्स लगता है. व्हेनेवर अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इनसाइड अ लिक्विड एट रेस्ट, so it will experience a upward force. That force is called as buoyant force, है ना. तो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट का वेट मान लो 50 न्यूटन का है, जो कि एयर में लग रहा है ना, 50 न्यूटन का वेट है इसका, तो वेट तो इसको क्या करेगा? वेट विल टेक दिस ऑब्जेक्ट टू मूव डाउनवर्ड विच इज 50 न्यूटन. And suppose this buoyant force, the upward force is 10 Newton. So can you tell me where this object will move? Whether it will move downward or upward? Tell me. Downward. Downward. And what would be its net force with which it will move downward? 40 Newton. 40 Newton. Very good. So इसका मतलब वो नीचे गिर जाएगा, सिंक कर जाएगा ना. तो सिंक ऑब्जेक्ट तभी करता है when its weight is greater than its buoyant force, है ना. So buoyant force is upward force that will act on a body whenever it is placed inside liquid. So that means
if depending on the situation whether this buoyant force is greater than the weight, it may sink or it may float. How? The situation is like just like this. You can get a three situation. This is also called as law of flotation. इसी को law of flotation भी कहते हैं. अगर weight greater है buoyant force से, तो it will sink. Is it clear? ये तो clear है. अगर weight ज़्यादा है, greater है buoyant force, so it will sink. And second situation is just like this, when it will float. So that means this buoyant force is greater than weight. So in this case, this buoyant force is greater than weight, so it will float. तो ये float कर जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है. I hope this thing is clear to everyone. And if it is equal, if both are equal, if buoyant force as well as weight is equal, so that means it will remain in equilibrium condition. So that means कि अगर कहीं भी place कर दो, इधर place करो चाहे इधर place कर दो ऑब्जेक्ट को, पानी के अंदर कहीं भी place कर दो वो वहीं रह जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पे net force 0 है. So this is a condition in which the buoyant force as well as your weight is equal. So that's why the net force is 0. In these two situations, the net force is there, and if it is sinking downward, the net force with which it will sink is weight minus Fb. If it is moving upward, so then that means it will float to the surface with the net force of Fb minus Fw. Is it clear to everyone? This is also called as law of flotation. बताओ ये क्लियर है? दाक्ष, सृष्टि, उसकी स्पेलिंग लिख दीजिए सर. किसकी? अच्छा, buoyant force की. ठीक है. So shall we move on to the next topic? आगे बढ़े. ओके, दैट मीन्स कि अभी तक हम buoyant force के बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया लग लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखेंगे तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसको हम buoyant force कहेंगे, है ना. और उसका वेट लग रहा है, उसको नीचे लेके जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन विच एवर फोर्स इज ग्रेटर, इट में मूव अप, इट में सिंक डाउन. ठीक है. सो इतना चीज़ हमें पता चल गया. नाउ एक और टर्म होता है, दैट इज प्रेशर इनसाइड लिक्विड, जो कि और सेकेंड टॉपिक है, विच इज प्रेशर इनसाइड लिक्विड. लिक्विड के अंदर प्रेशर जितना डीप अंदर चले जाओगे, सपोज दिस इज लिक्विड सरफेस, जितना डीप जाओगे, एंड दिस इज डी इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड. डेंसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन kg पर मीटर क्यूब. ओके, सो जितना डीप जाओगे प्रेशर डिपेंड उतना ही बढ़ता जाएगा. इट इज इक्वल टू d इंटू जी इंटू एच, वेर h इज अ डेप्थ फ्रॉम द सरफेस. तो इज इट क्लियर? सो दिस प्रेशर इनसाइड लिक्विड, ये चीज क्लियर है. सो इट इज इक्वल टू d इंटू जी इंटू एच के बराबर है, वेर d इज योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10, and h is your depth from the surface. So that means कि जितना अंदर जाएंगे हम पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, तो आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, लिक्विड प्रेशर बढ़ता जाएगा. So is it clear? So that means अगर कोई एक बलून है, या let it be a ball which is filled with elastic ball which is filled with air and it is released from the bottom. So what will happen? जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, ये इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा? कैन यू टेल मी? बिकॉज इट इज एन इलास्टिक बॉल. यस, बढ़ेगा, है ना. तो इसका साइज बढ़ता जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर घटता जा रहा है ना. यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था तो इसलिए परपेंडिकुलरली इस पे प्रेशर लग रहा था. एंड दिस परपेंडिकुलर प्रेशर इज नथिंग बट ये जो लग रहा है इस पे, इसको थ्रस्ट कहते हैं हम ना. और यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया जो लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. तो प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, यहाँ पे प्रेशर कम है. सो दैट्स व्हाई इफ इट इज अ बबल, ठीक है, तो इफ इट इज कम टू द सरफेस, इट्स साइज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, बिकॉज द लिक्विड प्रेशर
decreases as the bubble comes to afloat on the surface. Clear? Batao, shall we move on? Is it clear to everyone? So the pressure inside liquid depends upon depth only, acceleration due to gravity and the liquid itself. So that means कि अगर सी वाटर में चले जाएं या रिवर वाटर में चले जाएं तो प्रेशर सेम डेप्थ पे कहां ज्यादा होगा? सी वाटर में या रिवर वाटर में कहां ज्यादा होगा प्रेशर सेम डेप्थ पे? यस, एनीवन? सी वाटर में प्रेशर ज्यादा होगा, है ना? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. ओके, the most important aspect of pressure inside liquid is you must know the pressure inside liquid, which does not depends upon the shape and size of the container. So that means if I'll take 3 containers just like this, ये कंटेनर है ना, और एक और कंटेनर है, this is container second and this is container third, and it is filled to a same height with water. Water fill up कर दिया आपने, है ना, just like this to a same height. ठीक है. So its pressure at the bottom का relation बताओ क्या होगा? This container at here its pressure is A, B and C. जल्दी बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? इस वाले में कि इस वाले में? Yes, anyone? हर्षित. ओके, दाक्ष क्या बोल रहे हो? इस वाले में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ना? किस वाले में? कंटेनर सी वाले में, सी के बॉटम में. प्रेशर एट सेम डेप्थ इज ऑलवेज सेम. यू मस्ट रिमेंबर दिस. It does not depends upon shape and size of container. शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता. चाहे एक और कंटेनर हो, सो सपोज लेट दिस कंटेनर इज लाइक दिस, है ना, इसमें भी पानी भरा हुआ है सेम डेप्थ पे. सो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, याद रखना. सबका वर्टिकल हाइट सेम है, सेम डेप्थ पे, बॉटम पे वर्टिकल हाइट सेम है ना सबका, है ना. तो प्रेशर सब पे सेम होगा. लेट कि यहाँ पे ये डी प्रेशर है, सो इट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू पी डी, प्रेशर एट डी. तो ये क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर? ओके, इफ इट इज क्लियर, सो लेट कि इसका बेस एरिया है स्मॉल ए, इसका बेस एरिया है a/2, इसका बेस एरिया है ट्वाइस ऑफ ए, इसका बेस एरिया है 1.5 टाइम्स ऑफ ए. अब मुझे बताओ, प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल हाइट, है ना. प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन डेप्थ. It does not depends upon any other factor, and the pressure also does not depends upon shape and size of the container in which it is placed. Okay, now tell me, if Fa is the force applied by this whole water this whole water on the bottom of it, and Fb is the force applied at its bottom, and Fc is the force applied to its bottom, and Fd is a force applied to its bottom. So tell me the relationship between Fa, Fb, Fc and Fd. बताओ क्या होगा? प्रेशर तो सब पे सेम है भाई. वो what is I'm talking about the force applied by this liquid column on its bottom, which is Fa. Here it is Fb, here it is Fc, and here it is Fd. And the area of the bottom area is also given to you. A/2, twice of A, and 1.5 times of A. Now tell me the relation. Yes, anyone? Which the pressure we already know, pressure is same everywhere. So is it so? Force on B1 would be largest. Force on B1 इस पे लार्जेस्ट होगा. देखो, वी ऑलरेडी नो प्रेशर क्या होता है भाई. फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये हमने ऑलरेडी पता हुआ है ना, हमें पता है ना. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया.
ठीक है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? इट इज पैस्कल, एसआई यूनिट इज पैस्कल, PASCAL, है ना, विच इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. Pressure is nothing but force per unit area. If 1 Newton force acts on 1 meter square area, so this pressure is called as 1 Pascal. इसी को 1 Pascal कहते हैं. If 1 Newton force act on 1 meter square area, so then the pressure is said to be 1 Pascal. ठीक है, ये इसका SI यूनिट होता है. इसी को 1 Newton by 1 meter square को 1 Pascal कहते हैं. तो फोर्स होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया करेंगे हम. Pressure into area. So that means FA is nothing but PA multiplied by small a. This would be FA. And what about FB? FB is equal to PB multiplied by small area which is A by 2. Bottom area A by 2 है. यहाँ पे कितना होगा? FC. PB PC multiplied by twice of A. इधर कितना होगा? एफ डी, बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है, लिक्विड जो अप्लाई करता है, विच इज इक्वल टू बॉटम पे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ ए. नाउ टेल मी विच वन इज ग्रेटेस्ट? HC. Yes, very good. HC would be the greatest because the pressure, all these pressures are equal. Pressure at the same depth is equal. So that means, but force are different from pressure. The force, the maximum force that that this liquid column can apply is on its bottom is maximum at C. तो इस पॉइंट पे, इस कंटेनर में बॉटम पे फोर्स सबसे मैक्सिमम लगेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? वंश, वर्षा, दक्ष, अर्जुन, इज इट क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है, तो पहले क्या देखोगे आप? सबसे पहले क्या देखोगे? हाइट देख लेना. हाइट सेम है तो प्रेशर सब जगह सेम होगा. हाइट अगर डिफरेंट है तो प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना. और कंटेनर कैसा भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता भाई, है ना. शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डेप्थ देख लेना, वर्टिकल डेप्थ देख लेना, उस पर डिपेंड करेगा. एक और मैं यहाँ पे, जब इतना देख ही लिया है आपने तो और एक और चीज बना देते हैं. सपोज दिस इज ऑल्सो वन सच कंटेनर जिसमें लिक्विड ऐसे भरा हुआ है. लेट इट बी ई. यहाँ पे प्रेशर ई है. क्या सेम होगा क्या अभी भी प्रेशर? दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है, क्योंकि आप ये वाला हाइट नहीं लेंगे, यू हैव टू टेक वर्टिकल हाइट विच इज ऑल्सो इक्वल. है इक्वल? बोल. सो रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज टू. It does not, pressure inside liquid does not depends upon shape and size or where it is tilted. It is only dependent on vertical height. ठीक है, तो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा. ओके, बट यहां पे प्रेशर निकालने के बाद ये जो एरिया है जो इस पे लगेगा, फोर्स अप्लाई होगा जो लिक्विड अप्लाई करता है ऑन इट्स बॉटम, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एज वेल एज एरिया. वो एरिया पे भी डिपेंडेंट होता है. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. इज इट क्लियर? बोलो. चलो ठीक है, सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ. एक दो एग्जाम्पल और लो. बताना कहाँ पे प्रेशर सेम होगा, सही होगा कि कम होगा या ज़्यादा होगा. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये दोनों सेम ही लेवल पे हैं. एंड देन दिस, और ये इसके नीचे एकदम ऑलमोस्ट ए बी सी डी, ये इसके एकदम बॉटम पे है डी ई. E, F and G. Now tell me the relationship between pressure at D, A, B, C, E, F, G. Now tell me, क्या होगा? An object is floating on the liquid surface just like this.
बताओ क्या होगा रिलेशन, बोलो। यस हर्षित। Sir, E is equals to F is equals to G, which is greater than A equal to B equal to C, which is greater than D. PE इज इक्वल टू किसके बराबर? Sir, F and G. ठीक है, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम ही होता है ना, सो दैट मीन्स एट सेम डेप्थ pressure remains same. So the pressure at E must be equal to F must be equal to G. Now tell me the relationship between A, B, C. This must be greater than, don't you think? Yes, sir, greater than A, B and C. Pressure at A is equal to pressure at B. Is it so? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ये तो कंटेनर के नीचे है ना, तो इस पे प्रेशर लगेगा क्या? बताओ, ये तो कंटेनर के नीचे है दोनों, क्या इस पे प्रेशर लगेगा, लिक्विड प्रेशर? इस पे भी लगेगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल. इट डज नॉट डिपेंड कि वेदर इट इज कंटेनर इज देयर और नॉट, उस पर डिपेंडेंट नहीं है. इस पॉइंट पे प्रेशर ऊपर से लग रहा है, बट इस पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट. इस पॉइंट पे प्रेशर अपवर्ड लग रहा होगा, लिक्विड प्रेशर अपवर्ड लग रहा होगा बी एंड सी पॉइंट पे, डोंट यू थिंक? तो कंटेनर पे फोर्स अपवर्ड प्रेशर लग रहा होगा, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड लगेगा. ऊपर वाला जो लिक्विड कॉलम है नीचे वाले लिक्विड कॉलम पे लगाएगा प्रेशर, है ना. ऊपर वाला जो लिक्विड कॉलम है ये इससे नीचे वाला जो लिक्विड कॉलम है उस पर प्रेशर लगाएगा, दैट इज पीए. यहां पे क्या होगा, नीचे वाला, क्योंकि ऊपर में क्या है कंटेनर है, तो कंटेनर पे अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि लिक्विड लगाएगा, एंड दीज थ्री वुड ऑल्सो बी इक्वल. याद रखना ये भी इक्वल होंगे, ठीक है. नाउ टेल मी, Yes, sir. अब ये किसके, दिस वुड बी ग्रेटर देन पीडी. ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एट डिफरेंट लेवल. तो इज इट क्लियर? ये क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट? हर्षित, अखिल, आदित्य, अंश, No, sir, no doubt. कोई डाउट नहीं है? ठीक है. सो एक चीज याद रखना है बस इसमें, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर वुड बी अपवर्ड, है ना. तो इट्स लाइक कि लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना. तो कंटेनर इस पे इधर इस टाइप से फोर्स लगा रहा होगा, लिक्विड कंटेनर के सरफेस पे इस टाइप से फोर्स लगा रहा होगा परपेंडिकुलर, डोंट यू थिंक? कोई भी सरफेस आएगा इस पे फोर्स लगता ही चला जाएगा. लिक्विड लगाता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. ये चीज क्लियर है? बोलो. तो लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाता है इस पे, है ना. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. उसको हम थ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है. और बॉटम पे जितना फोर्स लग रहा है वो तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर इनसाइड बॉटम निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय बॉटम का एरिया निकालेंगे तो हम आसानी से प्रेशर निकल जाएगा. इज इट क्लियर? बोलो. कोई बता सकता है साइड वाले कंटेनर पे, साइड वाला जो सरफेस है उस पर भी तो फोर्स लगता है. बताओ, साइड वाले कंटेनर पे भी तो फोर्स लग रहा है. क्या ये इसमें हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया? क्या लगा सकते हैं हम फोर्स? क्या वेरिएबल है, कोई चीज कोई बताएगा इसमें? एज यू आर मूविंग डाउनवर्ड डोंट यू थिंक प्रेशर इंक्रीजेस? प्रेशर इंक्रीज करता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी तो बढ़ता जाएगा इतने एरिया पे, स्मॉल एरिया पे कंटेनर पे. मान लो ये स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल ए एक और ले लो कंटेनर का जो एरिया है, तो इस पे जो प्रेशर, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा स्मॉल ए एरिया पे कंटेनर के अंदर वाले,
है ना, तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा कि ये वाला फोर्स, ये वाला, दिस वुड बी ग्रेटर देन दिस, है ना. सो एज यू मूव डीप इनसाइड लिक्विड द प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ विच द फोर्स और थ्रस्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. यस दाक्ष, अरिजीत, सांची. सर भी लिक्विड से हाँ बोलो. जो लिक्विड सर कंटेनर पे फोर्स लगा रहा है और जो कंटेनर दूसरे कंटेनर पे फोर्स लगा रहा है वो इक्वल होंगी. दूसरे कंटेनर पे? कौन से कंटेनर पे भाई? ये इस सेम लेवल पे अगर एरिया ये ले लिया आपने स्मॉल ए, इस पे फोर्स और इस पे फोर्स दोनों पे सेम होगा, बट यहाँ पे जो है ना इन दोनों पे फोर्स इस तरफ सेम होगा, बट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स में ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है ना, और स्मॉल एरिया पे ही तो निकाल सकते हो कंटेनर के, है ना. तो एरिया कुछ भी हो सकता है. ये जो लेटरल एरिया है वो इस टाइप से भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर सर्कुलर कंटेनर है, ठीक है, और नीचे वाला बॉटम कंटेनर अगर सर्कुलर है तो ये वाला एरिया तो निकाल ही सकते हो. ठीक है, इसका सिंपल है निकालना. क्यों? क्योंकि इस एरिया पे सब जगह प्रेशर सेम है ना, क्योंकि सेम लेवल पे है. इस पे प्रेशर, बॉटम पे प्रेशर निकालना इट इज क्वाइट इजियर. व्हाई इज इट सो? बिकॉज बॉटम पे सब जगह प्रेशर सेम ही है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे सम लेवल पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह सेम लेवल पे प्रेशर सेम ही होता है ना. बोलो. बॉटम पे निकालना आसान है, कंटेनर के साइड में निकालना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, बिकॉज एज यू मूव डाउनवर्ड प्रेशर बढ़ता चला जाता है. डोंट यू थिंक? ओके, सो चलो ठीक है, वेरी गुड. सो दिस इज अबाउट प्रेशर. एक चीज और ले लो, एक दो एग्जांपल्स और ले लेंगे, देन फिर विल बी मूविंग टू द पॉइंट फोर्स. देखो ये चीज़ तो आपको पता ही है, प्रेशर एट द सेम लेवल इज ऑलवेज इक्वल, है ना. सपोज यू हैव बीन गिवन अ ट्यूब विच इज फिल्ड विद वाटर, ऐसे फिल किया गया है अप टू द लेवल ऑफ एल लेंथ. अब इसको टिल्ट कर दो आप, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा. सो इसका लेवल ड्रॉप करेगा क्योंकि दिस लेंथ वुड बी एल. डोंट यू थिंक? बोलो. ये जब ऐसे जाएगा कुछ ऐसे यहां पे आ जाएगा, द लेवल वुड बी लाइक दिस, है ना, एंड दिस लेंथ वुड बी स्मॉल एल. नाउ टेल मी, this is a pressure at situation A, the bottom पे pressure, and this is a pressure applied by the liquid at this situation. So which would be greater? Tell me. कौन सा ज़्यादा होगा greater? ये वाला pressure liquid जो अप्लाई कर रहा है, ये वाला, बताओ. बोलो. जय शुभम, क्या होगा? विच प्रेशर वुड बी ग्रेटर? कोई एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? यस कबीर. A1 is greater. Okay. Suppose this is L and D is the density of this liquid. Now tell me, and G is the acceleration due to gravity. तो pressure at A must be equal to dgl, यही होगा, dgl. What would be the pressure at B point? ये बताओ, ये क्या होगा? Anyone? It would be equivalent to density multiplied by G multiplied by vertical height, which is this. So कितना होगा vertical height? If this is L, so this would be L cos theta, this would be L sin theta. I think this thing is not new to you.
if it is L and this angle is theta, so this would be equivalent to L cos theta and this would be L sin theta. This is also called as resolution of the vector into two rectangular coordinates. इस वेक्टर को दो कोऑर्डिनेट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. सो दिस वर्टिकल लेंथ इज L sin थीटा और जो कॉस वाला एंगल जो ये वाला होता है ये होता है L cos थीटा, है ना. तो ये क्या होगा वर्टिकल लेंथ, इट वुड बी इक्वल टू L sin थीटा. डोंट यू थिंक ये होगा. सो ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा कि ये वाला, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि दिस इज लेस देन, वो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है. कितने एंगल पे होता है, जब वो 90 डिग्री. इसका मतलब जो वो ऐसे आ जाएगा तो प्रेशर मैक्सिमम बॉटम पे ज़्यादा होगा. तो इज इट क्लियर. इसका मतलब अगर इसको ऐसे टिल्ट करेंगे तभी जाकर ये प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. वो कब होगी, जब ये थीटा एंगल 90 डिग्री हो जाए तभी होगा ना. बोलो. एंड इन ऑल अदर सिचुएशन इन विच इट इज टिल्टेड, at this situation the pressure at the bottom would be less than the pressure at this point. तो ये वाला प्रेशर कम होगा as compared to this as long as it is tilted. Is it clear? बोलो. क्लियर है ना. So shall we move on, आगे बढ़े जल्दी से. आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये सारी चीजें करनी है हमें आज. चलो देखो भाई, अभी हमें पता चल गया था बॉइंट फोर्स, दैट इज नथिंग बट द अपवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में प्लेस करोगे, सपोज ये पूरा कंटेनर फिल्ड अप था, ठीक है, पूरा कंटेनर फिल्ड अप है. अभी हमें बॉइंट फोर्स निकालना है आपको. ऊपर में एक ऑब्जेक्ट, यू हैव बीन गिवन एन ऑब्जेक्ट हुज डेंसिटी इज सिग्मा, है ना, सिग्मा kg per meter cube. Sigma, its volume is v, and acceleration due to gravity is g. So what would be its weight? Weight कितना होता है, m into g. Suppose इसका mass m है, and what is mass? Mass is density multiplied by volume. यही होगा. तो weight कितना हो जाएगा, sigma vg होगा. बोलो. तो इसका वेट हमेशा याद रखना इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इस टाइप से निकालते हैं हम आसानी से. तो इट वुड बी सिग्मा वीजी. अगर यहाँ पे कोई स्प्रिंग बैलेंस ले लो, सो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, सिग्मा वीजी के अराउंड आएगी रीडिंग. कोई अगर स्प्रिंग बैलेंस लोगे तो, है ना, वो दिखा देगा कि कितना केजी का है. तो सिग्मा इंटू वी वो रीडिंग आ जाएंगी स्प्रिंग बैलेंस की. अब जैसे इसको पानी के अंदर प्लेस करते हैं तो इतना वॉल्यूम, और यहाँ से आप एक होल बना दो, है ना, होल बना के, ताकि जितना भी पानी अगर इसमें जाए, अगर आप इसको इस टाइप से प्लेस करते हो इस ऑब्जेक्ट को इसमें पानी के अंदर, सो सारा का कितना वॉल्यूम निकलेगा पानी का इसमें, बताओ. सो इट वुड बी इक्वल टू वी. जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज द वॉल्यूम, द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम. इसी के वॉल्यूम के बराबर होगा. बोलो. यस दाक्ष, शिवम. इसमें जैसे ही आप डालोगे इतना ही पानी, इतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा. और सपोज इसकी डेंसिटी रो है, रो केजी पर मीटर क्यूब. लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो केजी पर मीटर क्यूब. तो इसका जो ये है, ये जो इतना पानी जो निकला है, इसका वेट कितना होगा, कोई बता सकता है वेट. उसी को हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, है ना. तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, m इंटू जी. मास कितना होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है, रो. वॉल्यूम कितना है, v. ये हो गया मास, मल्टीप्लाइड बाय जी कर दोगे तो रो वी जी. सो दिस इज द बॉइंट फोर्स. इतना फोर्स अपवर्ड लगता है ब्लॉक पे. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सेज whenever a body is wholly or partially immersed inside liquid at rest, मतलब पूरा अंदर ले जाओ या आधा ले जाओ उस ऑब्जेक्ट को, so it will experienced
wholly or partially immersed inside a liquid at rest, ये liquid rest में है, then this object will experience loss in its weight. This loss in its weight is called as buoyant force, and it is equivalent to weight of the liquid displaced by object. Is it clear? ये weight of the liquid आ रहा है displaced, तो वही buoyant force होता है. ठीक है, फिर से देखो, सुनो, इसका वेट कितना होगा, सिग्मा वीजी. ठीक है, buoyant force कितना होता है, रो वीजी. तो ये नेट फोर्स इसका वेट का लॉस हो जाएगा ना. सपोज करो सिग्मा वीजी है 50 केजी का, जो पहले बताया था 50 न्यूटन, और buoyant फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन, है ना. तो नेट वेट कितना हो जाएगा, नीचे जाने का वेट कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 विच इज 30 न्यूटन, है ना. तो यही इसका क्या हो जाता है, एपरेंट वेट. दिस इज कॉल्ड इट्स एपरेंट वेट. इसका मतलब मैं नीचे से अगर होल्ड करना चाहूं, इस ऑब्जेक्ट को नीचे ना जाए, तो मुझे कितना फोर्स सपोर्ट लगाना पड़ेगा, 30 न्यूटन. सो दिस इज कॉल्ड एपरेंट वेट. तो डोंट यू थिंक इसका वेट रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस होके कितना हो गया है पानी के अंदर, 30 न्यूटन, है ना. सो दैट्स व्हाई whenever it is placed inside liquid, whenever object is placed inside liquid, its weight reduces, है ना. तो वेट का रिडक्शन होता है, वो वेट का रिडक्शन ही होता है buoyant फोर्स, है ना. वेट का कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना का रिडक्शन हो रहा है, 20 न्यूटन का रिडक्शन हो रहा है, लॉस इन इट्स वेट विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन. सो दिस इज कॉल्ड buoyant फोर्स. ठीक है, विच इज ऑलवेज एक्टिंग अपवर्ड, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू weight of the liquid displaced by object. Is it clear? This is called Archimedes principle. Whenever a body is wholly or partially immersed inside liquid at rest, it will experience loss in its weight. That loss in its weight is called buoyant force, and it is equal to weight of the liquid displaced by an object. Is it clear? बोलो अखिल, शुभम, ईशानवी, या फिर से एक्सप्लेनेशन दे, बताओ. यस, टेल मी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. लास्ट में कौन सा, ये चीज, यही तो buoyant फोर्स होता है. इसका ये देखो, इतना पानी बाहर निकल जाएगा, इस पानी का वेट कितना होगा, निकालो ना. वेट कितना होता है, m इंटू जी. मास कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ये वॉल्यूम तो ऑलरेडी पानी का v है. डेंसिटी लिक्विड का कितना था, इसका डेंसिटी रो है ना, इसका भी रो ही है ना, इतना ही तो पानी बाहर निकल रहा है, तो रो वी जी होगा. तो ये वेट ऑफ द लिक्विड है ना, इसी को buoyant फोर्स कहते हैं. जो ये जो अपवर्ड जो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, वो कितना होगा, वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा. यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. इसका मतलब कि whenever a body is placed inside a liquid at rest, it will experience an upward force. That force is called as buoyant force. So it will experience loss in its weight. It will experience loss in its weight. And this loss in its weight is equivalent to buoyant force. So कितना लॉस हो रहा है वेट का, 20 न्यूटन का हो रहा है. 50 न्यूटन का था ये एयर में, पानी के अंदर जाके सिर्फ 30 न्यूटन का बचा रह गया. दैट इज एपरेंट वेट. तो लॉस कितने का हुआ, 20 न्यूटन का. वही तो buoyant फोर्स है. बोलो, इज इट क्लियर? यस, टेल मी. तो मतलब सर लॉस इन वेट इज इक्वल टू सर जो buoyant फोर्स है. हाँ, तो वही चीज तो कह रहे हैं, लॉस इन इट्स वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इट इज इक्वल टू buoyant फोर्स. वही चीज तो कह रहे हैं इतनी देर से. ठीक है, बोलो, इज इट क्लियर? यस, वंश, उत्कर्ष, तनय. क्लियर है. ठीक है. सो इतना तो हमें पता चल गया भाई, है ना, कि हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया buoyant फोर्स का. एंड
वेट का मैग्नीट्यूड, वेट का भी मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग अगर बाहर से अगर इसको नापोगे तो इतनी रीडिंग आएगी। पानी के अंदर अगर नापेंगे तो कितनी रीडिंग आएगी, बोलो 30 आएगी, है ना। वो कितनी आएगी पानी के अंदर, रीडिंग कितनी होगी, W माइनस एफ बी, यही होगा रीडिंग। पानी के अंदर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इतनी आएगी। ये नीचे जाना चाहेगा बट अपवर्ड फोर्स, बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितने से जाना चाहेगा, इतने से। तो स्प्रिंग बैलेंस उसको खींचेगा ना ऊपर, डोंट यू थिंक। तो इतनी रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस की। ओके अब जल्दी से लॉ ऑफ फ्लोटेशन अगेन उस पर आ जाते हैं, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे और साथ साथ में रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताएंगे। इतना क्लियर है सबको, बताओ, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से तीनों सिचुएशन हम करेंगे। सिचुएशन 1 इन विच ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, सिंक, so Fw is acting like this and Fb is acting like this, है ना। let V is the volume and rho is the density of this liquid and sigma is the density of this solid, ठीक है, sigma is the density of this solid. So if in situation 1 if it sinks, अगर वो नीचे जाता है तो कितना नेट फोर्स से जाएगा, तो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, एपरेंट वेट Fw माइनस Fb, यही होगा। इस ये सिचुएशन में क्या होता है, वेट इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, है ना। सो दैट मीन्स व्हाट इज वेट, वेट कितना है, सिग्मा Vg है, मस्ट बी ग्रेटर देन रो Vg, तो Vg से Vg कैंसल। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब सॉलिड का जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होता है, तभी वो नीचे आएगा। क्लियर? ये तभी पॉसिबल है जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगा, देन इट विल सिंक एंड दिस इज द एपरेंट वेट एंड दिस इज ऑल्सो द नेट फोर्स विद विच इट विल कम डाउन। इतने नेट फोर्स से वो नीचे आएगा। तो कितना नेट फोर्स हो गया, सिग्मा Vg माइनस रो Vg, यही होगा। कितना होगा, सो Vg कैन ये ले लो कॉमन, तो इट वुड बी सिग्मा माइनस रो। दिस इज द नेट फोर्स विद विच इट विल कम टू द बॉटम, है ना। पूरा का पूरा पानी के अंदर है अभी ये, इतने फोर्स से वो नेट फोर्स से नीचे जाना चाहेगा। तो अगर आप मेरे को होल्ड करके रखना है इसको, तो मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सेम कितना लगाना पड़ेगा, बोलो, इज इट क्लियर? इतना ही लगाना पड़ेगा ना। यस उत्कर्ष, ओके। सो दिस इज अ नेट फोर्स, ओके। ये तो नेट फोर्स हो गया। अगर मुझे निकालना है नेट एक्सेलरेशन कि कितने से नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन वुड बी नेट फोर्स बाय मास, यही होता है। नेट फोर्स तो इतना लग रहा है, तो एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स विच इज Vg सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय मास। इसका मास कितना होता है, मास कितना होता है, सिग्मा इंटू जी, सिग्मा इंटू वी, यही होता है मास इसका ऑब्जेक्ट का। डेंसिटी इंटू इसका खुद का वॉल्यूम, तो कितना होगा, V से V कैंसिल, सो इट वुड बी इक्वल टू G सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा। सो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन with which it will come down. जब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि बॉटम से नीचे जाने में, अगर बॉटम d डिस्टेंस है तो कितना टाइम लगेगा नीचे जाने में, है ना, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुका हूं इसका। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में, वो भी निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, d डिस्टेंस, अगर d इज द बॉटम डिस्टेंस। इज इट क्लियर? टेल मी। इससे ज्यादा सिचुएशन और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कितना टाइम नीचे आने में, बॉटम में जाने में लगेगा, वो सारी चीज आगे इसमें कवर्ड हो गई। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट इन विच द बॉडी विल फ्लोट टू द टॉप, फ्लोट करेगा। फ्लोट करने के लिए बॉइंट फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा,
वेट से, है ना. सो दैट मीन्स buoyant force is greater than weight. So that means rho Vg is greater than sigma Vg. इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है क्या? रो Vg एंड सिग्मा Vg, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? यस बताओ. एनीवन? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? सो Vg से Vg कैंसिल कर लो. दैट मीन्स लिक्विड की डेंसिटी अगर सॉलिड से ज्यादा होगा ना तभी वो फ्लोट करेगा. ऐसा होता है. सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी तभी वो फ्लोट करता है ऊपर. बताओ. Yes, sir. है ना. तो ये सिचुएशन आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो ये चीज, है ना, बस ये डिराइव किया आपने पहली बार. ठीक है. सो अगेन कितने फोर्स से ये ऊपर आना चाहेगा? एफ बी माइनस एफ डब्ल्यू, यही होगा. इतने नेट फोर्स से ही ऊपर आना चाहेगा. सो इट वुड बी इक्वल टू सिग्मा, नहीं वो रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी. तो वी जी कैंसिल, वो ले लो, तो इट वुड बी रो माइनस सिग्मा. सो दिस इज द नेट फोर्स विद विच इट विल फ्लोट अप. ओके. सो व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन? तो ऊपर आने का एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स बाय इसका खुद का मास, इस ऑब्जेक्ट का, वो कितना है? Vg नेट फोर्स है रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय इसका खुद का मास कितना है? डेंसिटी इसकी मल्टीप्लाइड बाय इसका खुद का वॉल्यूम. तो V से V कैंसिल. सो G रो माइनस सिग्मा बाय सिग्मा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच इट विल कम टू द टॉप. सो अगर कोई बबल है यहाँ पे, इसको ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हो आप आसानी से. हाइट दे रखा है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये है. तो डोंट यू थिंक इसे निकाल नहीं सकते हो आप? हाइट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है. ठीक है. इनिशियल स्पीड तो 0 थी, तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा. बोलो. एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो जिसमें एक्सेलरेशन ये है. तो बबल का पता चल जाएगा ना टाइम की, कितना टाइम ऊपर आने में लगेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो ठीक है. आई होप ये फ्लोटेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कि कैसे ऊपर आएगा, कैसे नीचे जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें कवर्ड हो गई. एंड सेकेंडली, इफ थर्डली दोनों इक्वल हैं, बॉइंट फोर्स प्लस वेट, अगर दोनों को इक्वल कर दें तब क्या होगा सिचुएशन? ठीक है. ये तभी पॉसिबल है जब नेट फोर्स 0 हो रहा है, ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा. जहाँ प्लेस कर दोगे वहीं पे रह जाएगा, है ना. तो इस केस में क्या होगा? सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू रो. निकालोगे? सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू रो, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0. ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो अगर यहाँ प्लेस कर दोगे तो यहीं रह जाएगा, यहाँ प्लेस कर दोगे तो यहीं रह जाएगा, इधर प्लेस करोगे तो यहीं रह जाएगा, बॉटम में रखोगे तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि सब सिचुएशन में नेट फोर्स 0 है इस पे. ठीक है. ओके. ये सिचुएशन तब था जब सारा का सारा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है ना. आपने सिचुएशन देखी थी जब वो फ्लोट कर जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, buoyant force, this is weight. If it is moving up, इसका मतलब अभी buoyant force ज़्यादा है वेट से, है ना. What if कि जब वो सरफेस पे आ जाए तो ऐसे कुछ रहता है, फ्लोट करता है सरफेस पे. सम ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड एंड सम ऑफ द वॉल्यूम इज आउटसाइड वाटर. ऐसा होता है? बोलो. सो सपोज दिस इज द इनसाइड पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड. ठीक है. तो आउटसाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आउटसाइड, वी आउटसाइड. सो वी आउटसाइड वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वी इनसाइड. ये होगा? बोलो. इफ इट कम्स टू द टॉप, ये जो buoyant फोर्स होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. अब जैसी जैसी ये ऊपर आएगा ना, जैसे जैसे ये और ऊपर जाएगा, तो ये जो पानी के अंदर जितना वॉल्यूम है उसी पे डिपेंड करता है buoyant फोर्स. जब वो सारा का अंदर था
जब इस सिचुएशन में बॉइंट फोर्स की वैल्यू है रो वी जी, इस सिचुएशन में बॉइंट फोर्स की वैल्यू होगी रो वी इनसाइड इंटू जी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस केस में क्योंकि वेट ज्यादा था, बॉइंट फोर्स ज्यादा था वेट से, इसलिए ऊपर आ रहा था ये। जैसे ये ऊपर आएगा, ये वी इनसाइड पोर्शन कम हो गया ना, तो ये बॉइंट फोर्स भी कम हो जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जितना बॉइंट फोर्स है वो इसके वेट को बैलेंस कर लेगा इस कंडीशन में। तो इसका मतलब इस कंडीशन में बॉइंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट इस कंडीशन में। तो वो बॉइंट फोर्स किसके बराबर है? रो वी इनसाइड इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा वी जी। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, नेट फोर्स जब ये अंदर था पानी के अंदर तो बॉइंट फोर्स तो इतना ही लग रहा था जो कि वेट से ज्यादा था। जैसे ही ऊपर आएगा ये फ्लोट करके, बॉइंट फोर्स ओनली डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है। तो इसलिए देखा होगा आपने शिप्स वगैरह के कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर रहता है, जितना ज्यादा अंदर रहता है पानी उतना ही ज्यादा उसको अपवर्ड बॉइंसी मिलेगी, बॉइंट फोर्स मिलेगा, है ना। तो जितना वॉल्यूम पानी के अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा बॉइंसी मिलेगी इसको, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम, जो पानी के अंदर है। इस केस में जब वो पूरा अंदर था तो बॉइंट फोर्स ज्यादा था वेट से, इसलिए ऊपर आ रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऐसे जाएगा ऊपर, पहली सिचुएशन ऐसी थी, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा ऐसे, फिर ऊपर आएगा ऐसे। तो डोंट यू थिंक ये इमर्स्ड वॉल्यूम कम होता गया, तो इसका मतलब बॉइंट फोर्स भी कम होता गया होगा। एक ऐसी सिचुएशन आई जब ये जो बॉइंट फोर्स है जो कि कम हो गया है, वो आप बैलेंस कर लेगा वेट को, क्योंकि वेट क्योंकि बॉइंट फोर्स क्या कहते हैं, उस केस में ये बॉइंट फोर्स वेट को बैलेंस कर लेगा। ये सिचुएशन क्लियर है कि नहीं बताओ, ये ऊपर वाली। यस वर्षा, अखिल, कबीर, अर्जुन, ये सिचुएशन क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ईशानवी, मुस्कान, सांची, सांची, क्लियर है? यस सर। ओके चलो ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, कितना पोर्शन पानी का बाहर है या अंदर है वो चीज। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड? व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा वो? वी इन डिवाइडेड बाय वी, अगर यही होगा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, वी इनसाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड? वी आउट डिवाइडेड बाय वी। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? कितना पानी अंदर होगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड होगा, वो सब सारी चीज आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशंस एक और ले लेता हूं मैं। सपोज इट इज लाइक दिस, है ना, एंड 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इनसाइड। टोटल V का, इफ V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, 2/3 ऑफ वॉल्यूम इज इनसाइड, है ना, एंड it is placed inside liquid whose density is rho and its density of this solid is sigma. तो निकालो जल्दी से what is fraction of volume, what can be the fraction of volume inside in the terms of sigma and rho. What is the fraction of volume inside? कैसे निकालोगे? कितना होगा? हमें पता है ना, वेट बैलेंस करेगा किसको? पॉइंट फोर्स को। पॉइंट फोर्स कितना है? रो वी जी
इनसाइड वॉल्यूम कितना है 2/3 V इंटू जी, यही होगा पॉइंट फोर्स। ये किसको बैलेंस करेगा, इसके खुद के वेट को, सिग्मा वीजी, तो वीजी से वीजी कैंसिल, सो रो मस्ट बी इक्वल टू 3/2 ऑफ सिग्मा, ये तो है, इतना तो पता है। एंड व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, पानी के अंदर वाला फ्रैक्शन कितना है 2/3 V डिवाइडेड बाय V, टोटल वॉल्यूम इतना है 2/3, सो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड। परसेंटेज पूछा है तो 100 भी निकल सकता है, ठीक है। और दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस टाइप से रिलेशन निकाल लोगे, बताओ। यस दाक्ष, आदित्य, Yes, sir. क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है ना। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो Yes, sir. बॉइंट फोर्स है कितना पानी के अंदर है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये पूरा ही अंदर होता है तो ये बॉइंट फोर्स, यहां वॉल्यूम आप कैपिटल वी लगाओगे, ठीक है। ये ऐसे में बैलेंसिंग कंडीशन है, तो इसमें रो कितना पोर्शन अंदर है पानी के अंदर, इनसाइड वॉल्यूम, दिस इज इट। अभी ये क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लोट कर रहा है तो वेट और बॉइंट फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तो को कर दिया हमने इक्वल, ठीक है। बोलो, कई बार आपको सिर्फ इतना ही गिवन होता है, कई बार सिचुएशन में इस टाइप से गिवन होता है, बस इनसाइड वॉल्यूम गिवन है आपको, है ना, टोटल वॉल्यूम है V, तो आप कैसे करोगे, रो V इनसाइड G मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा VG। यहां पे कोई बता सकता है ये मैंने टोटल वॉल्यूम क्यों लिया है, क्योंकि जब भी mg निकालते हो, इसका वेट निकालते हो, वो कितना होता है मास, डेंसिटी इसका इनटू इसका टोटल वॉल्यूम ही होता है ना। तो यहां तो ये चीज इक्वल है, वेट, ये तो सही है, ठीक है। सो G से G कैंसिल, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, V इन डिवाइडेड बाय V कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय रो के बराबर हो जाएगा। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, इट वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय रो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, दिस इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड कितना होता है, कैपिटल V माइनस V आउट, यही होगा, डिवाइडेड बाय V, सिग्मा बाय रो। इनसाइड वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम माइनस आउटसाइड वॉल्यूम, तो ये भी क्लियर है, क्योंकि आउटसाइड वॉल्यूम लेट इट बी V आउट, सो दिस इज V माइनस V आउट डिवाइडेड बाय V, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड। अब मैं आसानी से निकाल सकता हूं Vi माइनस V आउट डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो V आउट, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, ये कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं हम, सिग्मा बाय रो माइनस, ओके, माइनस 1 माइनस सिग्मा बाय रो, यही होगा ना, ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस सिग्मा बाय रो। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, V आउट बाय V इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस सिग्मा बाय रो इंटू 100, बस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। सो एक और टर्म यहां पे याद रखो, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, इट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो कि है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को इस पानी के अंदर रखते हो, है ना, तो इसमें बॉइंट फोर्स अपवर्ड लगता है, ठीक है, एंड वेट डाउनवर्ड लगता है। इसका रिलेशनशिप इसमें कैसे होगा, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना होगा, दिस रिलेटिव डेंसिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड
इन द टर्म्स ऑफ एफ बी एंड एफ डब्ल्यू एस। देखो रिलेटिव डेंसिटी और क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर विच इज सिग्मा वी जी, यही होगा, वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन इट्स वेट, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स कितना होता है, रो वी जी होता है। अभी पानी में डाला है आपने, लिक्विड की डेंसिटी रो ही होगी ना, वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू होगी ना, है ना। तो वीजी से वीजी कैंसल, तो ये सिग्मा बाय रो आ गया फिर से। तो आप ये भी लिख सकते हो वेट इन एयर डिवाइडेड बाय पॉइंट फोर्स, या कह सकते हो वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन इट्स वेट, लॉस इन इट्स वेट, इसी को पॉइंट फोर्स भी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी को इस टर्म में भी कई बार आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, तो ये आप याद रखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी को और क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय पॉइंट फोर्स, या वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन इट्स वेट। लॉस कौन सा होता है, पॉइंट फोर्स ही तो होता है। वैल्यू पुट करोगे तो अगेन वही आया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच इट इज प्लेस्ड। अभी हमने वाटर लिया है तो इसलिए वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू ले ली। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। बताओ, तो अब हम क्वेश्चन पे चलें। बोलो, जल्दी से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स थोड़े कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब देखोगे एक या दो मैक्सिमम आ सकता है न्यूमेरिकल्स, है ना, और वो बस बिल्कुल सिंपल आएगा। एंड लेवल 1 का तो बिल्कुल ही सिंपल आता है, स्टेज 1 का। सो जल्दी से क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, क्या क्या कौन कौन सी यूनिट होती है प्रेशर की। हर्षित इज सेइंग ए, पास्कल होगा क्या भैया, यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं पूछा, पूछा है कि यूनिट क्या है प्रेशर का। प्रेशर की क्या क्या यूनिट हो सकती है, पास्कल, टॉर, बार, या नन ऑफ दीज, क्या होगा। The unit of pressure is Pascal, bar and torr. Okay. इसमें एक चीज है, देखो सिर्फ यूनिट पूछा है, सिर्फ अगर यूनिट पूछा है तो यूनिट वुड बी, अगर ऐसा यूनिट पूछा होता सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, ऐसा यूनिट पूछा होता तो दिस वुड बी द आंसर। एंड अगर पूछा है व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर का यूनिट, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, एंड टॉर भी हो सकता है। तो यहां पे नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देख लो रिलेशनशिप क्या होता है, 1 पास्कल तो होता है 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। सो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज 1 बार, याद रखना 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। व्हाट इज 1 टॉर, 1 टॉर होता है 133 पास्कल के बराबर। तो ये सारे रिलेशन आप याद रखेंगे। सो दैट मीन्स कि ऑल ऑफ देम आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सृष्टि, सिद्धार्थ, अंश, मुस्कान, क्लियर है। ठीक है, सो यहां नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछा व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो एसआई यूनिट तो पास्कल होगा। अगर सिर्फ पूछा है कि कौन सा यूनिट है, तो यूनिट वुड बी दिस। एक और यूनिट होता है 180 m। 180 m कितने पास्कल के बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये भी याद रखो। एक और यूनिट होती है वैसे तो 180 m इज इक्वल टू इतना, इट मस्ट बी इक्वल टू
760 mm ऑफ मर्करी कॉलम, Hg, यही होता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मतलब सी लेवल पे जितना एटमॉस्फेयर लगाता है प्रेशर, दैट इज कॉल्ड 1 atm, वो इतने पैस्कल के बराबर होता है। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, ठीक है। एंड 1 टॉर होता है 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम, ये भी याद रखना। 1 टॉर होता है 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम। तो जल्दी बताओ 1 atm कितने टॉर के बराबर होगा? 1 atm कितने टॉर के बराबर होगा? 760, है ना, क्योंकि 1 टॉर होता है 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम। ये भी सिंपल है भाई, मर्करी कॉलम 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम का मतलब क्या हुआ? अगर मर्करी को फिल कर दो, है ना, और उल्टा मर्करी पूरा फिल कर दो यूट्यूब में, इसको ऐसे प्लेस कर दो, तो मर्करी का जो ये पूरा आपने पानी भरा था, मर्करी, दिस इज मर्करी Hg, ये जो भरा है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा उसकी वजह से ये राइज करता है ना, तो ये जो कितना राइज किया, दैट इज कॉल्ड 760 mm। मैंने बताया था सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। इस पॉइंट पे प्रेशर 1 atm के बराबर है, इस पॉइंट पे प्रेशर 1 atm के बराबर है। इस पॉइंट पे प्रेशर निकालोगे वो लिक्विड कॉलम की वजह से होगा जिसकी इतनी हाइट है, वर्टिकल हाइट ये है जो कि आती है, कैलकुलेट करके आया 760 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ये हाइट है 760 mm, है ना। तो यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है और यहां पे प्रेशर है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम ही होता है। तो यहां पे 1 atm है, तो यहां पे प्रेशर कितना है? dgh कितना होगा? डेंसिटी ऑफ मर्करी मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितनी आ रही है? 760 mm। मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर में आ गया आंसर, ठीक है। सो दिस वुड बी 1 atm के बराबर होगा। डेंसिटी ऑफ मर्करी पुट करो, g की वैल्यू 9.8 पुट करो, मर्करी कॉलम की वैल्यू पुट करो, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद इतनी आ जाएगी, ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी देखो। यस, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज, क्या होगा? 0 होगा तब, या ग्रेटर देन वेट, या लेस देन वेट, क्या होगा आंसर? बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉइंट फोर्स इज, अब समझे नहीं, फ्लोट कर जाता है, ऊपर आ जाता है, वो कब होता है? फ्लोट्स इन, ओके, फ्लोट्स इन द लिक्विड, जब वो ऊपर आ जाता है, फ्लोट कर रहा है, ऊपर आ रहा है, वो कब होता है? ऐसा कब सिचुएशन में होता है? जब बॉइंट फोर्स ग्रेटर देन वेट होता है, तभी होता है ऐसा सिचुएशन में। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्लोट तभी ऊपर करता है जब ग्रेटर देन होता है, बॉइंट फोर्स किसके वेट से ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जल्दी से देखो। ये क्वेश्चन भी खूब आते हैं। अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर कंटेन्ड इन अ बीकर, व्हेन द आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फॉल, क्या होगा भाई? कुछ ऐसी सिचुएशन है, आइस ऐसे था, है ना, फ्लोट कर रहा है, जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तो लेवल जो ये था पानी का सेम रहेगा, ऊपर जाएगा, फॉल करेगा, क्या होगा? यस, टेल मी। व्हेन आइस मेल्ट्स, ओके, ईशानवी का क्या है? ए, शी इज सेइंग, शुभम इज आल्सो सेइंग ए, राइजेस, Harshit is also saying, Harshit is saying C, that will remain same. Disha, okay, ठीक है, Kundan is saying A, Bhumi is also saying A, राइज कर जाएगा क्या? देखो याद रखना, it doesn't rise, it will remain same, it will remain unchanged। इसका मतलब ये फ्लोट तो तभी कर रहा है ना जब आइस की डेंसिटी लिक्विड से, वाटर से कम है, तभी तो फ्लोट कर रहा है ऊपर।
जब ये पूरा मेल्ट कर जाता है ना, तो इतना पोर्शन, क्योंकि इतना पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा था इसने पानी का, तो ये सारा का सारा मेल्ट करके यहीं पे पानी बन जाना चाहिए, तभी तो राइज नहीं करेगा। डोंट यू थिंक? तो पानी का लेवल जब ये पूरा मेल्ट करके यहीं पे इतने वॉल्यूम में ही ऑक्यूपाई हो जाता है, तो इट डज नॉट चेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आदित्य का भी सही आंसर है, आदित्य इज ऑल्सो सेइंग सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। टू सॉलिड्स ए एंड बी फ्लोट्स इन लिक्विड, it is observed that A floats with half of its volume immersed. अब देखो ऑब्जेक्ट A है, इसका हाफ वॉल्यूम इमर्स्ड है, floats with half of its volume immersed, and B floats with 2/3 of its volume immersed. ठीक है, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए इज, डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी का रेशियो पता करना है आपको। करो, क्या होगा? टू सॉलिड एंड फ्लोट्स इन ए लिक्विड, किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, लेट की लिक्विड की डेंसिटी लेट इट बी डी, इसमें फ्लोट कर रहा है। सारी चीजें पता है आपको, कैलकुलेट करो। चल मी क्या होगा? हार्दिक इज सेइंग सी। ओके, यस हार्दिक, टेल मी कैसे आया सी? कैसे आया सी? यस, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? और किसी का? आदित्य क्या हो गया? देखो इस सिचुएशन में जितना वेट है उतना ही बॉइंट फोर्स है, इसका जितना वेट है उतना ही इसका बॉइंट फोर्स है। दोनों को पुट कर दो ना, सिंपल। इसका वेट कितना होगा? DAVG, यही होगा इसका वेट। वो कौन बैलेंस करेगा? इसका बॉइंट फोर्स जो अपवर्ड लग रहा है, जो लिक्विड अप्लाई कर रहा है ना। सो तो कितना हो जाएगा? D वन ऑफ दिस VA इंटू G, और यहां पे वॉल्यूम A है इसका टोटल वॉल्यूम VA है, क्योंकि 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम है ना जो कि पानी के अंदर है। तो ये चीज क्लियर है किसी को? इसका वेट इसके बॉइंट फोर्स के बराबर कर दो, तो VAG और VAG कैंसिल हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ A कितना हो जाएगा? लिक्विड के डेंसिटी के हाफ। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में भी करो। इसका जो वेट है जो नीचे है वो कितना होगा? डेंसिटी लेट की इसकी DB है, DB VB इंटू G, यही होगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड बॉइंट फोर्स। अपवर्ड बॉइंट फोर्स कितना होता है भाई? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय अंदर का वॉल्यूम विच इज 2/3 ऑफ VB इंटू G। तो VBG कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ B कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ D, DA बाई DB निकालो, कितना आ रहा है? DA बाई DB। अब बताओ, आदित्य का भी आ गया नाउ। 3:4। आपको पूछा है DA बाई DB, डेंसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ B, कितना आ रहा है? अब तो सॉल्व कर दिया है, जल्दी बताओ। आदित्य क्या आ गया है? एंड व्हाट अबाउट अदर्स? हार्दिक का तो आ ही चुका है। कबीर? ओके, डूइंग। ईशानवी
मुस्कान, अर्जुन, निखिल, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो डी ए बाई डी बी करना है। डी ए कितना है, डी बाई टू कर दो। डी बी कितना है, 2/3 ऑफ डी, है ना। तो डी से डी कैंसिल, ये तो क्वेश्चन मार्क था, डी से डी कैंसिल, तो यू विल बी गेटिंग एज 3:4। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वेट है वही बैलेंस करेगा इसको बॉइंट फोर्स को। तो वेट कितना है, डी ए डेंसिटी इसका खुद का मल्टीप्लाइड बाय इसका खुद का वॉल्यूम टोटल मल्टीप्लाइड बाय जी मस्ट बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कितना है, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इमर्स्ड वॉल्यूम कितना है, 1/2 ऑफ ए वी ए इंटू जी। तो वी ए जी कैंसिल आ जाएगा, बात की तो आसानी है। हो गया, यस। हार्दिक अग्रवाल, नहीं हर्षित अग्रवाल, वंश, शुभम, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया, सो गए हो क्या, आवाजें नहीं निकल रही तुम्हारी, व्हाट हैपन, ज्यादा पढ़ लिया आज। सो द सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बताओ, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी D हैज वेट W। विजुलाइज करते रहो, डेंसिटी कितनी है इसकी भाई, D है, वेट कितना है, कैपिटल W। इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी D। अंदर डाल दिया इसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जिसकी डेंसिटी कितनी है D। देन द एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इज, एपरेंट वेट कितना होगा बताओ। इज इट A B C D, क्या होना चाहिए। यस, टेल मी। अखिल कर रहे हो, ठीक है, करो भाई करो। हार्दिक, Yes, sir. ठीक है। वेट तो ये है, पानी में जाने के बाद वेट घट जाता है ना, तो वो कितना होता है, W माइनस जो वेट है माइनस बॉइंट फोर्स। बस इतना हिंट काफी है। करो ईशान भी। तनय कर रहे हो आप, शौर्य, सांची, समृद्धि कर रहे हो। ओके, अखिल का आ गया है, ठीक है। अखिल सिंह ए, बता दे रखा नहीं। ठीक है, आ नहीं रहा। दिशा, भूमि कर रहे हो, Yes, sir. ठीक है। यस आदित्य, कितना आएगा। आदर्श, वी ऑलरेडी नो एपरेंट वेट मतलब कितना वेट जो कि पानी के अंदर होता है, दैट इज क्या होता है भाई, वेट माइनस पॉइंट फोर्स, यही होता है एपरेंट वेट। कितना वेट से नीचे जाना चाहेगा, अपवर्ड तो पॉइंट फोर्स लग रहा है ना, तो यही तो होगा, यही तो इसका एपरेंट वेट होगा। पानी के अंदर जाने के बाद वेट घट जाता है ना, तो जो घट जाता है कितना वेट बचा रह जाता है उसी को हम पॉइंट
एपरेंट वेट कहते हैं। तो बॉइंट फोर्स कितना होगा, बॉइंट फोर्स कितना होता है, रो वी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डी, टोटल वॉल्यूम क्योंकि सारा का सारा पानी के अंदर है तो इमर्स्ड वॉल्यूम वी होगा इंटू जी, है ना। अब v को एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि इन द टर्म्स ऑफ d और ये लेके आना है हमें। वी ऑलरेडी नो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना होता है, सॉलिड की डेंसिटी कितनी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो मास कितना है, लेट किसका मास, ओके जस्ट मिनट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा d इंटू वी इंटू जी, ठीक है। एंड इसका जो वेट है, डेंसिटी कितना होता है, लेट कि इसका मास m है ना, m मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे मैं g से और यहां पे g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट कितना होता है, कैपिटल W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को v निकालना है ना, एलिमिनेट करना है मुझे, है ना। तो दिस g से g इधर क्रॉस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो mg किसके बराबर होता है, वेट के बराबर। तो v कितना हो जाएगा भाई, यहां से निकालो, v मस्ट बी इक्वल टू w बाय स्मॉल g इंटू कैपिटल D, यही हो जाएगा। तो v की वैल्यू आप पुट कर दो तो यूल बी गेटिंग एज w माइनस d, v की वैल्यू कितनी होती है, w बाय स्मॉल जी डी इंटू g, g से g कैंसिल, क्या कॉमन आ जाएगा w, तो 1 माइनस d बाय कैपिटल D, यही आएगा आंसर। बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है आपको, बट डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़े बहुत नहीं किए हैं अभी फिलहाल, जो कि आपको आज करना है ना। सो इट वुड बी इक्वल डी इंटू वी इंटू जी। इस टाइप के क्वेश्चंस ढेरों आते हैं, ठीक है। सो इट वुड बी इक्वल टू W माइनस 1 माइनस, तो आंसर वुड बी 1 माइनस डी बाय, सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा ए सही ऑप्शन है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो, है ना। तो चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन आज का सेशन हम यहीं ओवर करेंगे। चलो बताओ, टू पीस ऑफ मेटल इमर्स्ड इन a liquid have equal upthrust on them। दो मेटल पीस है ना, टू पीसेस ऑफ मेटल इमर्स्ड इन अ लिक्विड, दो मेटल पीस है, पानी के अंदर डाल दिया है, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, हैव इक्वल अपथ्रस्ट, मतलब बॉइंट फोर्स दोनों पे, दोनों का इक्वल है। तो क्या चीज सेम होगी बताओ, बोथ पीस मस्ट हैव इक्वल वेट, क्या दोनों का वेट सेम होगा क्या। बॉइंट फोर्स इक्वल होने का मतलब क्या होता है, टू पीस ऑफ द मेटल, इन दोनों की डेंसिटी तो सेम ही होगी, है ना, बट वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग पीस है। अपवर्ड क्या चीज सेम होगा, यस रिचा इज सेइंग बी, बोथ पीस मस्ट हैव इक्वल डेंसिटीज। ओके, टू पीसेस ऑफ मेटल, ओके अलग अलग मेटल भी डिफरेंट है, टू पीसेस ऑफ मेटल इमर्स्ड, मेटल भी डिफरेंट है, मेटल लेट इट बी ए एंड बी, इन अ लिक्विड हैव इक्वल अपथ्रस्ट, सिर्फ दोनों पे इक्वल अपथ्रस्ट है, मेटल भी डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी देख लो, इक्वल वेट भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए, बोथ पीस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम, या बोथ आर फ्लोटिंग टू द सेम डेप्थ, क्या होगा ऑप्शन। बॉइंट फोर्स इक्वल है दोनों का, मतलब बॉइंट फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम ए का जो कि पानी के अंदर है इंटू जी, दोनों का बॉइंट फोर्स इक्वल कर दो, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ ये बॉइंट फोर्स दोनों के इक्वल है, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसका बॉइंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम जो पानी के अंदर है वी बी इंटू जी, तो रो वी कैंसिल, दोनों का इमर्स्ड वॉल्यूम दोनों सेम नहीं होगा क्या। पानी में
अंदर जाने का मतलब अंदर जो पानी का अंदर जो वॉल्यूम है दोनों का, डोंट यू थिंक सेम होगा? क्योंकि बॉइंट फोर्स दोनों का सेम है। क्योंकि बॉइंट फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय जी, यही होता है। सो डोंट यू थिंक दोनों के अंदर वाले वॉल्यूम सेम होंगे जो पानी के अंदर है? सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ पीस मस्ट हैव इक्वल वॉल्यूम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्लियर है सबको? बताओ, क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, चलो। when a loaded boat enters into the sea water from a river, it rises because। अब कोई लोडेड बोट है, देखो सिचुएशन देखना, और ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। लोडेड बोट एंटर्स इनटू द सी वाटर, तो फ्रॉम अ रिवर वाटर, पहले वो रिवर वाटर में था तो ये सिचुएशन थी। अभी आगे जा रहा है, यहां से सी वाटर स्टार्ट हो जाता है, सो इट राइजेस, तो ये थोड़ा और राइज कर जाता है ना। तो इसका मतलब जितना पानी के अंदर ये जो था ये पोर्शन, अब वो कम हो गया है, तभी तो राइज किया है सी वाटर में। ऐसा क्यों है? ओके, कबीर सिंह बी, हर्षित बी, आदित्य बी, शुभा मिसिंग ए। देर इज मोर वाटर इन सी देन इन रिवर। ये कोई लॉजिक नहीं है। ओके, बी, ठीक है। सी वाटर इज डेंसर देन रिवर वाटर, यस इट इज बिकॉज ऑफ दैट। तो ये राइज इसलिए करता है कि इस सिचुएशन में देखो, जो पानी के अंदर जो इतना वॉल्यूम है ये बैलेंस कर रहा होगा ना, ये बॉइंट फोर्स कितना होगा? लेट की रिवर वाटर की डेंसिटी है रो आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू रिवर वाटर इनसाइड वॉल्यूम इनटू जी। ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा ना, एफ डब्ल्यू, ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। जैसे ही, क्योंकि वेट तो सेम ही है, चाहे वो सी वाटर में हो, चाहे वो रिवर वाटर में हो, चाहे वो सी वाटर में हो, तो वेट तो सेम ही है ना। अब वेट सेम है, अब ये जो रिवर वाटर, ये जो डेंसिटी है इसकी बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ गई है, तो पॉइंट फोर्स भी बढ़ गया होगा ना, डोंट यू थिंक? क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ग्रेटर होती है रिवर वाटर से। नीचे वाला जो बैलेंसिंग फोर्स है दोनों में सेम है, वेट यहां भी सेम होगा बोट का, वेट यहां भी सेम होगा वेट का। यहां पे जो अपवर्ड बॉइंट फोर्स है वो सी वाटर मल्टीप्लाइड बाय इनसाइड वॉल्यूम इन सी वाटर इनटू जी होगा, बॉइंट फोर्स इन सी वाटर। क्योंकि रिवर का सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। अब बट अभी बैलेंस भी तो उसको सेम ही 100 न्यूटन को करना है। मान लो बोट का वेट है 100 न्यूटन, तो बैलेंस तो इसको 100 न्यूटन का ही करना है ना। ये बढ़ गया है तो ये घटना नहीं चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो अभी भी सेम 100 न्यूटन को ही करना है इसको। ये अगर बढ़ गया है, इसका डेंसिटी बढ़ गई है, तो इसका अंदर वाला वॉल्यूम ये कम होना चाहिए, इसको कम होना पड़ेगा ताकि वो सेम वेट को बैलेंस कर दे। तो इट इज बिकॉज सी वाटर इट इज बिकॉज सी वाटर इज डेंसर देन रिवर वाटर। तो ये रीजन समझ में आया कि नहीं आया? यस अखिल, दिशा, 100 न्यूटन के ही वेट को बैलेंस करना है। यहां पे बॉइंट फोर्स इतना मिल रहा था, यहां बॉइंट फोर्स क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, अभी भी 100 न्यूटन को ही बैलेंस करना है आपको, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब बॉइंट फोर्स अभी भी 100 न्यूटन को बैलेंस करना है, तो ये अंदर वाला वॉल्यूम को घटना पड़ेगा ना, ताकि अभी भी वो 100 न्यूटन को बैलेंस कर दे। बोलो, क्लियर है? सो
एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देन आज का सेशन हम यही रैप अप करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड अ फ्लूइड इज, फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्या होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कॉलम एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, या ऑल ऑफ द ट्रू, ऑल ऑफ आर ट्रू। प्रेशर इनसाइड लिक्विड क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम, ये तो ठीक है। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये भी सही है क्या? चल मैं आंसर, अखिल का आंसर डी आ रहा है, एंड बाकियों का? अखिल का डी आ रहा है, शुभम का भी डी आ रहा है, उत्कर्ष इज ऑल्सो सेइंग डी, एंड रिचा इज ऑल्सो सेइंग डी। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, है ना, सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है, ठीक है, मतलब सेम लेवल पे इक्वल होता है सभी डायरेक्शन में। सो द ऑप्शन इज, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी, और डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जितने भी सेम डायरेक्शन पे, अगर सेम लेवल पे सब डायरेक्शन में इक्वल होगा। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, उस पर भी डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे भी डिपेंड करता है। सो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हम आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं कि फ्लूइड के जितने भी टॉपिक्स थे और जितने भी बॉइंट फोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो आपको फिर से रिवाइज करना है ना, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट, एंड स्पेशली दोज पार्ट इन विच 1/3 और 2/3 ऑफ द वॉल्यूम इज, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इज इनसाइड, ठीक है। और एक दो चीज और याद रखना है, क्या चीज जो आपको बताया था, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय क्या होता है, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, जिस लिक्विड में आपने प्लेस किया है, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। अगर दिस इज रिलेटिव डेंसिटी इन लिक्विड, अगर बोले रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछे तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वाटर में बॉइंट फोर्स नीचे वाला है, ये लिक्विड के अंदर बॉइंट फोर्स है। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम, ओके। आई होप दिस सेशन इज क्लियर टू एवरीवन। आज का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू।